Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, probably this will be our last economic course. Just after completion of this course, we will start studying the very beautiful course of geography. So, stay tuned. Now, without wasting any further time, let's jump straight to our today's topic, that is international institutions. In these international institutions we will study one of the Bretton Woods twins. Actually there was a conference I think in USA और उस कॉन्फ्रेंस का पर्टिकुलर नाम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. सो वहीं से दो इंस्टीट्यूशन निकल के आ गए. एक था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल लीजिए. Second is our World Bank. Actually, World Bank, it is not a single bank, but it is a group of banks. That's why the official term is World Bank groups. तो इतनी जल्दी नहीं करते हैं. After this, we will study World Bank only. So, International Monetary Fund और Finance start करते हैं. इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं पहले. अब ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है क्या करता है, बट आपको उसकी थोड़ी सी टर्म्स नहीं पता, टेक्निकल टर्म्स. तो सबसे पहले करता है सर्वेलेंस. किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. देन इट चेक्स एंड हेल्प्स कंट्रीज दैट आर फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. 1991 इंडिया, याद रखिए. देन ensure fluidity of international finances. So these are some of the objectives of IMF. तो ये करता क्या है? मान लीजिए BOP क्राइसिस आ गया, तो ये करता क्या है? It gives finance to the member countries, only to member countries which are 189 in number. How it gives finance to these member countries? Actually, IMF has assigned some quota to different countries according to the country's GDP. Then say इंटरनेशनल करेंसी और बजट और ओपननेस एंड वन मोर वेरिएबल इज देयर. सो अकॉर्डिंग टू दीज कोटास, ये सारे वेरिएबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस ये याद रखना है GDP हैज़ द मैक्सिमम शेयर for assigning quota via IMF. So taking into consideration all these variables, International Monetary Fund या Finance gives every country a quota. ठीक है, तो एक कोटा में क्या क्या आएगा? For the fulfillment of this quota, country has to deposit 25% of gold or international currencies to the IMF plus 75% of currency in its domestic currency. So that's what the subscription of quota means in relation to the IMF. But this quota is a very general variable. इसका प्रैक्टिकल पर्पस कैसे इम्प्लीमेंट होगा? सो फॉर दैट प्रैक्टिकल पर्पस वी हैव अनदर टर्म कॉल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स. सो एक कोटा तो बस एक बुकिश लैंग्वेज है. इसकी इम्प्लीमेंटेशन या रिफ्लेक्शन इन द बैलेंस बुक्स कैसे दिखती है? वाया SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स. नाउ दिस SDR is a notional currency. What is meaning of notional currency? It means it is not an actual currency, but it is a theoretical currency, and it is not a single currency but a
basket of currencies. Actually, before the Great Depression in USA, this particular SDR consists of a single currency, that is US dollar. But after the collapse of these huge international market, this particular SDR has been given in the form of a basket of currency. So there are various currencies which are very powerful, like US dollar, pound of Britain. The latest addition is renminbi. कहाँ की है? चाइना की. Then euro. So these are the currencies. I think एक और है, yuan, sorry, yen of Japan. So these are the 1 2 3 4 5 currencies that are instilled in the SDR basket of currencies. अंडर दिस SDR देखते रहना सारी चीज़ें, और क्वेश्चन बहुत छोटा सा आ जाएगा कि SDR किसके रिलेशन में, कोटा किसके रिलेशन में. IMF की जो मेन फाइनेंशियल विंग है, इसका मतलब द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ IMF इज, सो द मेजर सोर्स और द बिगेस्ट सोर्स is this quota subscription. There are numerous other sources from which IMF collects its finance for its working, but the largest source among them is the quota subscription. ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको. 25% किस में होना चाहिए? गोल्ड और फॉरेन करेंसीज लाइक ये जो हमने बताई बास्केट ऑफ करेंसी. 75% इन डोमेस्टिक करेंसी. So by fulfillment of these two, और नहीं है बीच में एंड है, by these two you have subscribed to the IMF's quota and now you are eligible of taking finance from this particular institution. उसी का हमने कोटा, क्योंकि एक थ्योरेटिकल टर्म है, हमको एक प्रैक्टिकल टर्म चाहिए थी, यूनिट ऑफ करेंसी चाहिए थी. सो वही यूनिट ऑफ करेंसी का नाम दे दिया हमने स्पेशल ड्राइंग राइट और SDR. SDR इज़ अ नोशनल करेंसी. एक्चुअल करेंसी नहीं है कि इसके नोट छपेंगे, इसके कॉइन्स बनेंगे, ऐसा नहीं है. ये बस एक नोशनल करेंसी है. एंड एक्चुअली इट इज़ अ बास्केट ऑफ करेंसीज. ये सारी हैं US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, रेनमिनबी, यूरो एंड जापानीज येन. तो ये सब इसमें है. वन मोर टर्म, रिजर्व ट्रांसपोजिशन. अब ये क्या चीज़ है? जो SDR है हमारा पूरा, ये किसके पास है? IMF के पास है, क्योंकि हमने कोटा सब्सक्राइब किया है. अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस SDR इज आवर रिजर्व ट्रांसपोजिशन. इट इज द पोर्शन ऑफ डेट फॉरेन करेंसी डेट अ कंट्री लाइक इंडिया कैन डिमांड एनी टाइम फ्रॉम द IMF. एंड दिस RTP इंडिया कोई भी ऑब्लिगेशन में नहीं है कि इसे तुरंत इसे वापस फुलफिल करना है. इट मीन्स एट द टाइम ऑफ क्राइसिस इंडिया कैन डिमांड इट्स रिजर्व ट्रांसपोजिशन फ्रॉम IMF विदाउट एनी कंडीशन और विदाउट एनी टाइम लिमिट. अंडरस्टूड? सो तभी इफ़ यू रिकॉल और रिकनेक्ट दिस क्लास फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस, आई हैव टोल्ड यू फॉरेन करेंसी असेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स फॉरेन currency plus gold plus our SDR plus our RTP reserve transposition. Understood? Now इसमें आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से 1991 की इंडिया ने डिमांड की थी कुछ फाइनेंस. सो यस, इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ, इनफैक्ट अ फाउंडिंग मेंबर of this IMF International Monetary Fund, and that's why IMF has given its finance for the rectification of BOP crisis. बट ये कितना भी ले सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसी लिमिट है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है. 200% ऑफ SDR एनुअली एंड 600% ऑफ टोटल. मतलब एनुअली तो आप
200% ऑफ SDR ले सकते हो फाइनेंस, और इन टोटल 600% आप ले सकते हो। देन द लोन्स गिवन बाय IMF इज़ नॉट ऑन द कंसेशनल बेसिस, कोई कंसेशन नहीं दे रहे आपको IMF, आपकी दिक्कत थी, आपकी मजबूरी थी, आप आए IMF के पास, एंड IMF हैज़, you are requesting IMF to give finance, and yes, after a fulfillment of some goals or objectives, the IMF is ready to give you this finance. It means there will always be terms and condition if the IMF is financing a country. ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? Because it is just opposite to the World Bank, the next Bretton Woods twin that we are going to study now. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन DC में ही। मेंबर्स मैंने आपको शायद से बता दिए, 189 मेंबर्स हैं। वर्ल्ड बैंक के पास कितने मेंबर्स हैं? 189 मेंबर्स। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? सेम वॉशिंगटन DC में। जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ नॉट अ सिंगल बैंक बट अ ग्रुप ऑफ बैंक्स। So these are the 5 institutions of the World Bank Group. World Bank Group has 189 members. IMF की सदस्यता वही बैंक ले सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की सदस्यता, द मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप कैन बी टेकन बाय एनी कंट्री विच इज़ पार्ट ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन। 189 मेंबर्स हैं। HQ कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। इट इज़ द वन ऑफ द ब्रेटन वुड ट्विंस। So first is International Bank for Reconstruction and Development. Actually after the World War II, as we all know, the world is heavily destroyed, और खासकर यूरोप की जगह।
So for the purpose of reconstruction and development of Europe in a rapid time scale, this particular bank has come into place. But as the Europe has rapidly developed, so afterwards it has of no use. But nowadays it is providing its assistance in the least developed countries as well as the developing countries. So अभी हमको क्या पता चलेगा कि इसी का इंडिया सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी है. Why? Because World Bank Group provides the long-term loans, unlike the International Monetary Fund. तो वो शॉर्ट टर्म देता था, कंसेशनल लोन्स नहीं देता था, टर्म्स एंड कंडीशन लगाता था अपने लोन पे. वर्ल्ड बैंक ग्रुप उसके उल्टा है. ठीक है. सो फर्स्ट इज इट विल गिव कंसेशनल लोन्स, इट विल गिव लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इट हैज़ नो टर्म्स एंड कंडीशन applied to its loans. The second is International Development Bank. Now this is the main arm of financing the least developed countries as well as developing countries, and hence India is one of the biggest beneficiary of this loan. ठीक है. The next is International Finance Corporation. This is the private arm. This is the private arm of World Bank Group. अच्छा, what are the sources of financing this World Bank? भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, every institution that is running, it has some operational cost. Then this institution has to give salaries to its full-time members, director, president जो भी है उन सबको भी देनी पड़ेगी. So source of finance क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का? IMF का मैंने बता दिया, कोटा सब्सक्रिप्शन इज द बिगेस्ट सोर्स. The biggest source of World Bank Group is the issuance of bond. किनको? To the member countries. और ये क्यों लेंगे बॉन्ड, क्यों लेंगे कंट्रीज? Because this World Bank Group holds high prestige in the eyes of its members. किसी भी इंस्टीट्यूशन की उतनी ही वैल्यू है जितनी उसकी मेंबर कंट्रीज उसे वैल्यू दे रही हैं. In the recent news we have seen before the pandemic and during the pandemic, we have seen that the credibility of World Health Organization has been questioned. In the era of Donald Trump, the credibility of United Nations is in question. So that's why the credibility of an institution is up to the level, and at that level the members are giving or obliging to its rules, the institution's rules. So up to that level there is the credibility of any institution. ठीक है. So the issuance of World Bank Group bonds and the purchase of these bonds कौन करेगा? And the purchase of these bonds by the member countries defines the credibility of World Bank Group. तो इसीलिए वहीं से it is the biggest source of financing the World Bank Group. International Finance Corporation. अच्छा, these two are effectively known as World Bank. अगर दो इंस्टीट्यूशन बताने तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, these constitute World Bank. The third is International Finance Corporation. It is under World Bank Group. So it is the private arm of the World Bank Group. It gives the loans to the private ventures in different member countries. जो भी प्राइवेटली बिल्ड हो रहा है और उतना फाइनेंस नहीं आ पा रहा तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन उसे फाइनेंस करेगी. ठीक है. लोन देगी, फाइनेंस तो क्या करेगी? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इन शॉर्ट फॉर्म मीगा. नाउ अंडरस्टैंड दिस. दिस इज आवर इंडिया एंड दिस इज चाइना. चाइना वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बट देयर इज political turmoil going on the soils of India. It means instability of government, some civil uprisings, some armed rebellion is taking place inside India. Now the investment of China into India, all the established investment like कोई बिल्डिंग खड़ी होगी, कोई कॉर्पोरेट हाउस खड़ी होगा,
इस पॉलिटिकल टर्मोइल में अगर चाइना के बिल्डिंग को हार्म पहुंचता है तो क्या चाइना इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। नाउ दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओनली 2 कंट्रीज। अब मान लीजिए 189 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, बट एकदम से पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, तो हु इज़ गारंटिंग दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंट्री इन अनदर कंट्री? ऐसे तो पूरा इंटरनेशनल फाइनेंस से ठप पड़ जाएगा। जो हम FDI FPI पढ़ रहे हैं, ये तो कुछ नहीं रहेगा। तो डेट्स वेयर वर्ल्ड बैंक ग्रुप कम्स इनटू प्लेस, एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटीज under this MEGA provision that your investment is safe. It is kind of a notional security, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को भी क्या पता कब किस कंट्री में कौन सी पॉलिटिकल टर्मोइल स्टार्ट हो जाए। जैसे अभी हमने कजाकिस्तान में देखा, एकदम से लगे हाथ वो जो अलमाटी सिटी है उसमें पूरे प्रोटेस्टर्स घुस गए, एयरपोर्ट में प्रोटेस्टर्स घुस गए। तो वर्ल्ड बैंक को भी इतना सब पता नहीं है, बट इट इज़ अ नोशनल सिक्योरिटी डेट येस देर इज सम हायर इंस्टीट्यूशन डेट इज गारंटिंग योर इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री। सो डेट्स वाई वी विल नॉट बिकम वेरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन टू अदर कंट्रीज। सो डेट्स इज द मेन पर्पज ऑफ दिस मीगा। तो आपको समझ में आ गया। चाइना ने इन्वेस्ट किया है इंडिया में हैविली, 5-6 बिल्डिंग्स खड़ी है। नेचुरल कलामिटी आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना इंडिया की गलती है ना चाइना की, बट ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल इन द कंट्री, इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइनीज इज गेटिंग हार्म्ड, देन येस इट कम्स अंडर द मीगा ट्रीटी ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब चाहे उसे इंडिया कंपनसेट करेगा या जो भी उनके प्रोविजंस होंगे, वी डोंट हैव टू गेट इनटू टेक्निकलिटीज। द लास्ट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट। द वेरी मेन पॉइंट, ऐसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक सेंटर है जो कि इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होती हैं ट्रेड रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, तो उनको सुलझाएगा और उन्हें सेटल करेगा। बट द मेन पॉइंट इज इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। इंडिया इज पार्ट ऑफ द अदर 4 बट नॉट पार्ट ऑफ दिस। सो अगर इन द प्रीलिम्स अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया इज एंटायरली द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, सो इट इज़ ऑफ कोर्सली अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। HQ मैंने बता दिया आपको कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। These are the last 2 institutions that we will be going to study. तो ज़्यादा इनके बारे में जानना नहीं है, क्योंकि हाँ भाई अगर आ गया तो आ ही गया क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं, तो ये तो हमेशा न्यूज़ में रहते ही हैं। द फर्स्ट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। फाउंडर है चाइना, मैक्सिमम शेयर किसके पास है, चाइना के पास। HQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर्स इज इन बीजिंग। The second is New Development Banks, or also known as BRICS Bank. BRICS is a group of countries: Brazil, Russia, India, China, South Africa. So these 5 countries come together to form a group, and these countries are the founding members of this New Development Bank. इस New Development Bank में वोटिंग पावर इक्वल है सबके पास, like in the IMF, in the World Bank. Those who have highest share, those who have highest quota, they have the maximum voting power, ठीक है। but in this NDB each country has a single voting power, so that is the main difference. and second of all, BRICS क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसे तो और भी कंट्रीज़ का हो सकता है, ज़रूरी नहीं इन्हीं का हो, बट BRICS शुड हैव 55% ऑफ कैपिटल एट एनी पीरियड ऑफ टाइम या एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनके बारे में इतनी ज़्यादा बड़ी बातें नहीं थी। अब थोड़ा सा चलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, देख के आना, बताना मुझे भी किधर है।
So these are the investment models. The first is engineering, procurement, construction. बस नाम देखते रहिए, आपको समझ आता जाएगा क्या चीज़ है. जो भी EPC कॉन्ट्रैक्टर होगा वो अपने क्लाइंट को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा. इंजीनियरिंग करेगा जो भी उसने बिल्डिंग बनानी है, प्रोक्योरमेंट करेगा जितनी भी चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, लैंड है, एंड द कंस्ट्रक्शन, एंड देन इट विल हैंड ओवर टू इट्स क्लाइंट. ठीक है, तो दैट इज़ द EPC मॉडल. द सेकेंड इज बिल्ट, ऑपरेट, ट्रांसफ़र मॉडल. इसमें क्या करेगा, द कॉन्ट्रैक्टर और द प्राइवेट पार्टी विल बिल्ट द फैसिलिटी, विल ऑपरेट इट, एंड देन इट विल ट्रांसफ़र इट टू गवर्नमेंट. ठीक है, दीज आर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स. 3 तरह के मॉडल्स होते हैं. एक तो पूरा गवर्नमेंट बना दे फैसिलिटी, सेकंड इज़ पूरा प्राइवेट बना दे फैसिलिटी, एंड थर्ड इज़ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. दोनों अपना अपना हाथ बटाएं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैसिलिटी. तो वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. इन दिस पर्टिकुलर थिंग द प्राइवेट पार्टी इज़ नॉट ओनिंग द प्रोजेक्ट, बट इट इज़ ओनली बिल्डिंग द प्रोजेक्ट, operating it, and then transferring it. Understood? The next is the build, operate, own, transfer. So आपने देख ही लिया होगा डिफरेंस क्या है. owning. Now the private companies often prioritize this investment model over this. Why? Because now it is owning the facility before the transfer the same facility to the government. So arranging the finances is very in a way simpler in comparison to this. क्योंकि हमारी जब फैसिलिटी है सो हम और लोन भी लगा सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, ये जो हमने फैसिलिटी बनाई है इसी को हम एज अ कोलैटरल रखेंगे बैंक के पास कि देखो ये हमारी है. बट इन दिस पर्टिकुलर मॉडल द प्राइवेट पार्टीज आर नॉट ओनिंग द फैसिलिटी, सो दैट्स वाई अरेंजमेंट ऑफ करेंसी और फाइनेंस इज क्वाइट डिफिकल्ट इन दिस पर्टिकुलर मॉडल. अंडरस्टूड? Then comes the bought annuity model. Now in this bought annuity model, while the construction and maintenance of this facility, the government will provide a lump sum every year to this private player. कब तक? जब तक फैसिलिटी प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट प्राइवेट प्लेयर का चला नहीं जाता प्राइवेट प्लेयर के पास. अंडरस्टूड? सो इसमें हर साल जब से स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, हर साल कुछ ना कुछ मनी देती रहेगी गवर्नमेंट टू द प्राइवेट प्लेयर. पहले प्राइवेट प्लेयर इज अरेंजिंग इट्स ओन फाइनेंसेस. देन हाइब्रिड एन्युटी, ये EPC प्लस एन्युटी मॉडल का हाइब्रिड है. इसमें क्या होगा, एट द कंस्ट्रक्शन फेज 40% ऑफ द फाइनेंस will be provided by the government to the private player, and the rest 60% is provided at the completion or end of the project. So this is the hybrid annuity model. The second last one is the viability gap funding. What is this viability gap funding? As the name suggests, this is the project, the 3-story building project. At every floor we are going to open a spa. But this is a village area and most of the population is poor. There are only some affluent families. If for example we assume that all these affluent families will taking the service of this spa, so 1 story is enough for this project, but the government want to develop this area. तो जैसे जैसे सर्विसेज आएंगी वैसे वैसे पुअर अट्रैक्ट होंगे कि हम चलो ये सर्विस चाहिए तो और कमाते हैं,
थोड़ी सी उनको प्रोत्साहन आएगा कि और कमाते हैं और पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो ऐसे गवर्नमेंट की सोच है, ठीक है, ये हम मान नहीं रहे, ऐसे गवर्नमेंट की सोच है इन अवर यूटोपियन वर्ल्ड। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट इज फोर्सिंग द प्राइवेट प्लेयर टू बिल्ड अ 3 स्टोरी। तो वायबिलिटी प्रोजेक्ट की इतनी सी है, द एक्चुअल इफेक्टिवनेस, but government is forcing private player to build both these extra stories. So government is saying to private player कि please private player you build 1 story, you give all your finances and the rest 2 story that you will be building it is from my side. मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, मैं आपको पूरी मनी आपकी वापस दे दूँगी। So this is called viability gap funding. The actual project or the viable project is of only 1 story, but as the government intention is of futuristic approach, so that's why it want to construct 2 more stories, 2 और स्टोरी बनाना चाहता है। अगर 2 और स्टोरी बनाना चाहता है तो प्राइवेट प्लेयर बोल रहा है भाई मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं, ना मैं लगाऊंगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। बट गवर्नमेंट क्या है, वेलफेयर स्टेट है, तो वो क्या बोल रही है, चलो मैं आपको देती हूँ रुपए बाय द वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड प्लीज कंस्ट्रक्ट दिस 2 स्टोरीज। Understood? The last is not a model but it is a technique, special purpose vehicle. मान लीजिए टाटाज है। Now a tender has been generated by the National Highway Authority of India that we want to construct a road, expressway, road नहीं, expressway। आज जाके थोड़ा गूगल करना expressway, how expressway is different from national highways and other highways. Now government has issued a tender of construction of this expressway and Tatas are interested to build this expressway. तो समझौता हो गया, contract done, deal done. Now what Tatas will do, Tatas will create a special purpose vehicle which is nothing but a न्यू कंपनी। और ये न्यू कंपनी में क्या करेगी, द सोल पर्पज ऑफ दिस न्यू कंपनी इज टू कंस्ट्रक्ट दिस हाईवे एंड ऑल द फाइनेंसेस फ्रॉम टाटाज अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू एसपीवीज अकाउंट। सो मोर क्लैरिटी, मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर गोल ओरिएंटेडनेस विल कम आफ्टर दिस क्रिएशन ऑफ एसपीवी। तो जितने भी हमको पता चल जाएगा कि ये जो टाटाज हैं, पहली बात तो ये अपना फंड्स डाइवर्ट नहीं कर रहे कि इस एसपीवी में जितना भी फंड लग रहा है ये भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा दिए। सो ऑल दीज माल प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस विल गेट एलिमिनेटेड बाय फ्लोटिंग दिस एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ना पढ़ने के लिए इकोनॉमी में बहुत कुछ है और वो बताने में कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि वो आप भी सारा याद नहीं कर पाओगे और हैंस हमें भी, टीचर्स को भी वो इतना याद नहीं हो सकता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो इतना याद नहीं हो सकता, बिकॉज इकोनॉमी इज़ अ वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट। जैसे अभी मैं आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बता दूँ तो मैं बताऊँगा अच्छा रोड्स में 100% FDI है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर में MSME स्टार्ट करूँगा मैं, फिर कोल्स के कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, वो बताऊंगा मैं आपको, सागरमाला प्रोजेक्ट, देन नगर वन प्रोजेक्ट। तो ऑल दिस प्रोजेक्ट्स आर काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन, और ये टाइम टू टाइम अगर ये न्यूज़ में है तो आपको याद करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, तो इकोनॉमी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। रेफरेंस बुक तो मैं आपको बता ही देता हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स। अब जाते जाते एक और चीज़ लेके जाओ, याद आ गई तो। ऐसे ही याद आ गई थी तो अच्छा है, आपको भी पता चल जाएगा यहाँ से। लाफर का किससे रिलेटेड है, फिलिप्स का ये तो आपको पता होगा, फिलिप्स का तो पढ़ा रखा है। अनएम्प्लॉयमेंट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन, नायरू पढ़ा था ना, नॉन एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके कुछ था। गिनी कोफिशिएंट, हाईली इन न्यूज़, किससे रिलेटेड है, यस, इनइक्वालिटी। और
unequal distribution of resources, finances, money. So Gini is a coefficient. Phillips and Laffer are curves. Laffer कर्व किससे रिलेटेड है? अगर थोड़ा सा याद रखना है तो इतना याद रखना, टैक्स से रिलेटेड है. अगर ज़्यादा याद रखना है तो ये याद रखना, टैक्स रेट एंड रिलेशन किसके साथ है? टैक्स रेवेन्यूज़ के साथ. तो आमतौर पर देखा ये जाता है कि एट द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर lessening your tax rate or you are reducing your tax rate, there is eventual increase in the collection of tax revenues. ठीक है, तो ये थोड़ा सा बोलता है लाफर कर्व में. फिलिप्स कर्व में क्या बोलता है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बोलता है. एंड गिनी कोफिशिएंट इज अबाउट इनइक्वालिटी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. सो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम अपना इकोनॉमी कोर्स. अगर आपको अच्छा लगा कोर्स तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, लाइक बटन दबा दीजिए मोटिवेशन के लिए, और देखते रहिए हमारा चैनल आई हैव अकेडमी. वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट जर्नी विद द ज्योग्राफी कोर्स. टिल देन टेक केयर. जय हिंद.